सत श्री अकाल जी। प्राइम एशिया टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर पन्नू लैके एक बार फिर तो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ रूबरू हो गए हाँ। मैं हाँ नवजीत। देश दुनिया ਦੀਆਂ खबरों ਤੇ चर्चा करने ਲਈ सीनियर पत्रकार ਤੇ ਉੱਘੇ विश्लेषक जतिंदर पन्नू जी मेरे नाल ने। सब तो पहला स्वागत फिर करते चर्चा। पन्नू साहब स्वागत जी। सत श्री अकाल जी। शुक्रिया नवजीत जी। सत श्री अकाल। पन्नू साहब, ममता बनर्जी के दो करीबी मंत्री ईडी ने गिरफ्तार किया एक जने नूं, कहंदे घर तो ਇੰਨੇ ਕੁ पैसे मिल गया कि मशीनां मंगाउणियां पईयां सी गिणने दे लई। तुसीं उहदा एक दिन जिक्र कीता सी, अजकल ये तो आम हो गया, मशीनां मंगाउणियां ही पैंदियां। किवें देखते हैं? मैनूं तो हुण चाहे लगदा ये है कि सारियां थावां ते पक्के प्रबंध करने पैणगे कि जिथे भी छापा मारन वास्ते पुलिस ने जाना उन्हां दीयां गड्डियां च नोट गिणन वालीआं मशीनां लगियां ही होण जी। बहुतियां थावां ते इहो हाल हुंदा पिया। छापा वजदा ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ जी गल जापदी है, फोड़ा फड़ी हुंदी आ, उत्थों मुड़ के नोटां दे ढेर निकल आउंदे आ, फिर बंदा भेज के मशीनां मंगाउंदे आ ते मशीनां पहले ले आया करो। हुण तां इह है कि कल्ला मशीनां नोट गिणन वालीआं नाल नहीं सरना, नाल सोना तोलन वालीआं मशीनां भी लिआउणियां पैणीਆਂ जी। आ संजय पोपली दे केस विच लग गया पता। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 12-14 किलो सोने ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ही निकल आईਆਂ। ਜਿਹੜੇ दूसरे गहने से राल के पता ही नहीं, 16-17 किलो सोने कर रखी बैठा जी। चांदी किन्नी है। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਿਊਲਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੋ ਜਾ ਕਰਨ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੇ ਜਾ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਆ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਧਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨ ਵਾਲਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਟੀਮਮੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ 2 ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਛੱਡੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜੂ ਭਲਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਸੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਸਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਇਹ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੱਗਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਤੇ ਬੀਬੀ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਪਿਆ, ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 10 ਕਰੋੜ ਨਿਕਲਿਆ, 20 ਕਰੋੜ ਨਿਕਲਿਆ, 30 ਕਰੋੜ, ਭੜਕ ਤੱਕ ਗਿਣਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ 150 ਕਰੋੜ ਕਰਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਆ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ
तो यह भी शक सी कि जे एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने चरणजीत ਸਿੰਘ चन्नी मुख मंत्री होंदियां ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ तो ਸਾਨੂੰ भी पै सकती है। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਆ ਵੱਡੇ घर के मरीज बन जाओ, भाजपा च रल जाओ, एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट इनकम टैक्स उन्होंने सलाम तो ना उत्थे रोक लेना, तो पंजाब की सरकार नूं इशारा चल जूगा कि हुण भाजपा दे नाल है, इन्हां नूं नहीं हत्थ पाउणा जी, ये किसी वड्डी टीम दे नाल ने। वो सारे जिहड़े उत्थे गए उन्हां दे विच्चों कईयां दे तां नां गली गली चर्चा च ने भी बहुत वड्डे करप्ट ने, बहुत वड्डे ठग ने, बहुत वड्डे चोर ने। वजारतां दे विच हुंदियां उन्हां ने किसी नूं छड्डिया नहीं, सका सोदरा भी नहीं छड्डिया। उस जिहड़ा जो कुछ बंगाल च होया ना, ये सारे देश में एक फैले वरतारे का एक निक्का जिहा हिस्सा जी। इत्थे किसी सूबे दे विच किसी मंत्री नूं, किसी साबका मंत्री नूं फड़ लैण, इन्ना कि नहीं तेरे नाल थोड़ा जिहा घट हो से हर एक दे कोले माल निकल आउणा, पर जिहड़ा फड़िया जांदा जिद्दां कहंदे ने जिहड़ा जित्तिया ओह सिकंदर जी, इत्थे आके जिहड़ा फड़िया गया सन ते ओह चोर है, बाकी सारे उन्ना चिर तक अपने आप नूं दुੱਧ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ जी। पर साहब दिल्ली की गल करते हैं तो फिर दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी बनाई सी, हुण मंग उठी है कि CBI जांच करवाई जाए। उधर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि असी कीता विकास विरोधियों के अखां विच रड़कदे पे हैं, इस करके कार्रवाई की जा रही है। मनीष सिसोदिया का नाम आ रहा है, किसे किवें देखदे तुसीं? देखो शराब का धंधा इहदे विच कुछ ना कुछ तो गलत माड़ा मोटा होया होगा, माड़ा मोटा होया कि मोटा तगड़ा होया किसी नूं की पता जी। ये धंधा इहो जिहा जिहड़ा मतलब कोई बंदा साफ सुथरा च रह जाए ये मनना ही औखा। ये वो भी ने जिहड़े करोड़ां दी हेराफेरी करी जांदे ने, वो भी ने जिहड़े बोतलां दी हेराफेरी करी जांदे। थोड़ी जानकारी दस दियां जी जी, क्योंकि शराब इहो जी चीज़ जिहड़े बंदिआं नूं आप बेईमानी करना सिखाउंदी है। वाजपेयी साहब एक बारी विदेश दौरे तो आए, वो भी चले गए, जिहड़े उन्हां नाल लीडर ते अफसर गए सी वो भी चले गए, प्रैस वाले भी निकल गए। मगरों जो जहाज के पायलट एयर होस्टस स्टीवर्ड वो सारे बाहर निकलण लगे तो कस्टम वाले ने तलाशी ले ली, किसी के कोलों 10 बोतलां शराब दियां, किसी कोलों 5 बोतलां, किसी कोल 20 बोतलां निकलाइयां, जिहड़ा लेडी स्टाफ सी उन्हां कोलों भी निकलाइयां। पुछया ये आईयां कित्थों, खरीदियां जे कितों? नहीं जी। गल की सी कि वाजपेयी साहब दे नाल जिहड़ी प्रैस पार्टी गई सी उस वक्त दे प्रैस के फार्मूलिਆਂ मुताबिक उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ शराब ਦੀਆਂ बोतलां भी दित्तियां जा रही सी, पर उन्हां 'ਚ बहुते वो सी ਜਿਹੜੇ पींदे नहीं सी, ਜਾਂ घट्टो घट्ट पब्लिक दसना चाਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ नहीं पींदे। उन्हां नहीं लईआं, जिन्हां लैणीਆਂ ਸੀ लेके चले गए एक एक बोतल, जिन्हां नहीं लईआं उन्हां ਦੀਆਂ बोतलां पईआं सी ते इन्हां ने आखिया आपो 'ਚ वंड लो, कागਜ਼ਾਂ भी ते पै गईआं। ਇੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓ तो तुहानूं दस देणगे कि शराब बंदे नूं किड्डी छेती बेईमान बनाउंदी है। एक आम मुहावरा कि जट ने जाके रात नूं आड़तियां कोल कणक वेची सी, वो पहलां कहंदे जी छाणा लगदा पिया, जे पूरी सफाई नहीं हुई, आ जा फिर उन्हां चਿਰ आपां थोड़ी थोड़ी एक एक पैग लाउने आ। एक एक पैग लाया तो एक पैग तो बाद ते अगले दा आपे जी करदा हुण दूजा भी हो जे जी। तीजे पैग ते जाके गिणती कीती, कहंदे जी 17 बोरियां 14 किलो हो गए। सवेरे जट आया, उन्हें आख्या वो लाला जी राती कणक आपां तलाई सी भला किन्नी सी, तो वेख के हुण जी कहंदे सुलखण सिंह ये किहड़ी कहण वाली गल आवे 14 बोरियां 17 किलो, तो सिर खुर के कहंदा मैनूं भी ना इदां लगदा सी, एक चीज़ 17 एक 14 पता नहीं बोरियां किहड़ियां ते किलो किहड़े आ, जिहड़ी रात नूं 17 बोरियां 14 किलो सी, सवेर नूं 14 बोरियां 17 किलो रह गई सी। ये इत्थे ये कारोबार इदां दा जिह 'च सब कुछ इदां ही चलदा जी। ਇਹ ਹੁਣ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मनीष सिसोदिया च कोई नुक्स नहीं, असीं आस करांगे कि ना होवे। अज तक ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कदे कोई दोष नहीं लगा। ਹੁਣ जे दोष लगता तो इस दोष के उत्ते बड़ी बड़ी क्यों करनी है, सफाई हो जान देनी चाहिए है जी। जांच एजेंसियां इस पासे ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਆਂ, खड़ा तो उन्होंने छड्डना नहीं। पहला उन्होंने सेहत मंत्री सतिंदर जैन इस करके नहीं पढ़िया कि सतिंदर जैन बहुत करप्ट है, फड़िया इस करके है कि आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां वास्ते इंचार्ज रहा सी जी। चोणां दसंबर 'ਚ होणीਆਂ गुजरात ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਊਗੀ कि गुजरात में शराबबंदी है
शराबबंदी ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ हर तीजे चौथे साल ਉੱਥੇ शराब के गोदाम फड़े जाते, ਉੱਥੇ कौन पहुँचाਉਂਦਾ जी। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ शराब घर घर होम डिलीवरी होਣ ਡਈ ਆ गुजरात 'ਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिहार में शराबबंदी तो मुख मंत्री नीतीश कुमार एक थां ते गया तो एक 10-11 साल के बच्चे ने आख्या सीएम सर वो रोकन लगे अफसर, तो सीएम नीतीश कुमार कहता नहीं भी बच्चे को बात करने दो। तो बच्चे ने जाके आख्या जी मैं 5वीं जमात के बच्चों को ट्यूशना पढ़ाना, आप पता नहीं 6वीं के 7वीं पढ़दा। उन्हें आख्या मैं जड़ियाँ ट्यूशना पढ़ाना, मेरे तो 2-3 साल छोटे बच्चे जिन्होंने मैं पढ़ाना, उस चों पैसे आउंदे आ ते उहदे नाल मेरी माँ घर का खर्चा चलाउंदी है, मेरा प्यो जी कमाई करता वो सारे पैसों नाल शराब पी लैंदा तो मेरे भी खो के लै जांदा ते असीं बड़े तंग आ। हुण मुख मंत्री वास्ते एक तां इह सी कि बच्चा अपने प्यो की शिकायत कर रहा, दूजा मुख मंत्री दी कर रहा सी कि तू तो शराबबंदी कीती है ते तेरे राह च शराब आउंदी कित्थों आ जी। उन्हें आख्या साडा टीचर भी इदां दा टीचर आउंदा ही नहीं कदे, वो जो कुछ ने सारा आख्या वो सारा कुछ दसदा यह है कि इत्थे भारत का कोई राज भी साऊ ढंग नाल नहीं चल रहा। मनीष सिसोदिया दे दोष लगे, चलो अपना जवाब देवे, वो भी बाकी तो लगते बाकी जवाब देंदे, वो भी अपना जवाब दे देवे, जो सच्चाई है सामने आ जाओ जी। पर सर गैंगस्टਰਾਂ की गल करते हैं, पिछले समय दौरान रौला काफ़ी वधिया, कभी सियासतदानां ते दोष लग जाते हैं कि ये साथ देंदे है, ये बनाउंदे है। हुण 5 सूबियां दीयां पुलिस काम करन लगी है गैंगस्टਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, एक तालमेल कमेटी बनाउण लगी है कि कार्रवाई ਅਸੀਂ इकट्ठे मिल के करांगे। उधर गोल्डी बराड़ है कहते ਉਹਨੂੰ भी पंजाब लियाउण ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ जा रही है, किन्ना क सौखा काम लगता है? जो गोल्डी बराड़ ते विदेशों 'ਚ ਫਿਰਦਾ जी, ये ਪਹਿਲਾਂ नीरव मोदी ਇਹਨੂੰ विजय माल्या ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਿਆਉਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, मैं तो पिछले 15 दिनों तो कह रहा, बिल्कुल मैं तो मुड़ कहता रहा कि अड सूबों चों गैंगस्टर ते गैंग आपो तालमेल करते चलते रहे। मैं मुड़ कहता सा कि यह कली पंजाब पुलिस का काम नहीं, कली दिल्ली पुलिस का काम नहीं, इन्हां सारे सूबों का तालमेल चाहिए। मैं तो यह कहता सा कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह सारे सूबों के मुख मंत्रियों की या मुख मंत्रियों ने सदना ते पुलिस के मुखियां की एक सांझी मीटिंग सद लो जी, उत्थे तालमेल कमेटी बनाओ। उन्हें नहीं बनाई। हुण इन्हां 5 सूबों ने आपो च बना ली। 5 सूबे किहड़े आ? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान ते उत्तर प्रदेश। चंगी गल है कि इन्हां ने बना ली, पर गलत गल इहदे च इह होई आ कि इन्हां 5 दे विचाले दिल्ली आउंदी है। दिल्ली देश की राजधानी है जी, ते क्राइम दा अड्डा भी ओह बनी पई है। हुण भी आ सिद्धू मूसे वाले केस विच पंजाब पुलिस तो भी पहला दिल्ली पुलिस ने रब लिया कि लारेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल दे विच बैठा भी फिल्म स्टार सलमान खान नूं भी मरवाउणा चाहुंदा ते सिद्धू मूसेवाले दे कतल विच भी उदाहत सी। जिहड़ी दिल्ली पुलिस दिल्ली च बैठी है, देश दे दिल विच बैठी है, जिथे सब तो पहला कोआर्डीनेशन होनी चाहिए सी। आ 5 सूबों की तालमेल कमेटी बनाउण लग्या, उस दिल्ली नूं शामिल नहीं किया गया। तो जे दिल्ली शामिल ना होगी तो अगों गल किदां चल सकदी है? मैं तो यह कहना कि 5 सूबों की कल्लियां दी नहीं, सारे देश के सूबों की बना दो। जे इत्थे भी बनानी है घट्टो घट्ट नॉर्थ जोन की बना दो जी। नॉर्थ जोन के विच ये 5 सूबे दे आ गए ना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान तो यूपी, इस दिल्ली भी पाओ, इस जम्मू कश्मीर भी पा दो तो उत्तराखंड भी पा दो। 5 ते 3 8 हो जाएंगे, इन्ना तो कर लो। चलो गुजरात वगैरह उन्होंने एक पश्चिमी सूबों की वक्री बना दो जी, दक्षिणी सूबों की वक्री बना दो। ये सारियां कमेटियां तालमेल करके जब तक चलणगियां ना, तुसीं गैंगां नूं ते गैंगस्टरां नूं नत्थ नहीं पा सकते। वो इस वेले इन्ना इंटरस्टेट नैटवर्क अपना बना बैठे आ, उन्हां दे बंदे विदेशों में भी बैठे आ, हांगकांग 'च बैठे आ, जर्मनी फ्रांस 'च बैठे आ। उन्हां नाल तालमेल वास्ते चंगी गल है कि 5 सूबों की तालमेल कमेटी बनाई, पर माड़ी ये है कि सिर्फ 5 की बनाई है, बाकी भी शामिल होना चाहिए जी। पर साहब एक अनाज का संकट बहुत चलता पाया सी, जो दा रूस का तो यूक्रेन का युद्ध शुरू होया उदों तो लैके हुण समझौता होया दोनों विच कि काले सागर राही एक दूजे नूं भेजिया जा सकता है। विश्व पद्धर ते जिहड़ी फिर समस्या खड़ी हुई सी, वो हल हो सकती हुण कुछ हद तक। देखो उत्थे यूक्रेन का तो रूस का आपो च मुकाबला कोई नहीं। यूक्रेन छोटा देश है, रूस बहुत बड़ा। यूक्रेन आबादी पक्षों भी रूस का तीजा हिस्सा है, तो एरिया वाइज खेत्रफल के पक्षों भी इसका तीजा हिस्सा है जी। पर दूसरा पक्ष यह है कि जिहड़ी कणक की सप्लाई है बाकी सारी दुनिया नूं,
उस 100% सप्लाई चो 13% अमरीका करता, 13% आस्ट्रेलिया करता, 13% रूस करता। ये तिने वड्डे देश है। तो जिहड़ा यूक्रेन रूस का तीजा हिस्सा वो तो 4% करे तां भी बहुत है। वो कल्ला 8% करता सी। जी जी। हुण हालत यह है कि जंग का भनिया देश आ, ਉਹਦੇ अपने लोगों वास्ते भी कणक नहीं बची। जो वाढियां पैणियां सी उदों जंग लग गई, वो तो दुखी होए पे बाकियां नूं की सप्लाई करनगे। रूस ने आख्या सी सप्लाई करन नूं तैयार है। उन्हां दे नाल यूएनओ का सैकटरी जनरल गुतरेस भी जुड़ गया। उन्हां सारिਆਂ ने रल के रूस ते पाबंदियां लातियां। रूस ने कणक की सप्लाई बंद करती। फिर सारे आखण भेजदा नहीं, कहंदा भेजां किदां, ये कोई फाइल थोड़ी है जी मैं ईमेल तुहानूं कर दूंगा, फोटो थोड़ी है जी। ये ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਘੱਲ ਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਣੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਫਸੇ, ਗੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਸੇ ਆ। ਯੂਰਪ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਡਈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ अखीर एक राह कढ़िया गया। यूएनओ का सैकटरी जनरल विच पिया। उन्हें पिछले 15 दिनों 2-3 बार मीटिंगां कराइयां। तकरीबन एक हफ्ता पहला शायद तुहानूं याद होवे मैं कहा सी कि यूएनओ के सैकटरी जनरल ने कहा कि इन्हां दोवां देशों का अनाज के मामले घट्टो घट्ट समझौता हो गया जी। यूक्रेन के कोल भी पिया जिहड़ा अनाज है गोदामां 'च, वो बाहर कढ़ना चाहे तो रूस रोकेगा नहीं, तो रूस का अनाज भी बाहर जाए तो रोकया नहीं जाएगा। पर फिर अड़िका तो फिर पै जाना कि रूस के जहाज बाहर जा नहीं सकते, जिथे गए उस देश ने जब्त कर लेने। तो जे जहाज वो जा नहीं सकते तो दूसरे आके फिर जां तो लै जाण। वो जंग लगी तो अग वरदी तो गोले वरदियां चो आके ले जाणगे किदां, जां आधे चले जाके समुद्र 'च एक दा माल चुक के दूसरे ते लोड करनगे। ये करन नूं 100 पौड़े करने पै सकदे। पर फिर भी मैं कहना कि यूएनओ के सैकटरी जनरल ने विच पै के घट्टो घट्ट एक समझौता इस तरह का करवा दिता जिहदे विचों एक आस बच सकती है कि कोई राह निकले। उदा जब तक ये जंग चलती पई है रूस की ते यूक्रेन की, बंदे रोज़ मरते, सधारण लोग भी मरते, फौजी भी मरते जी। यूक्रेन के भी मरते, रूस के भी बहुत मर गए। और रूस के ये गल चलती है कि इन्ने बंदे मरवा लिया। तो रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहता अजे तो इन्ने मरे। जे किते रोकदा नाम है, नाटो वाले आके यूक्रेन च बह जाते, इत्थे आके अपने एटमी हथियारों बेड़ देंदे, उन्हां हथियारों का मूँह साडे वल होना सी। अज नहीं कल से ये लड़ाई सानूं लड़नी पैनी सी। एटमी हथियार इत्थे चलने सी, दूर बैठ के अमरीका, आस्ट्रेलिया ते यूरोप वालों ने तमाशा वेखना सी। इन्हां ने बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी वालों ने वो कहंदा असीं तां लड़ाई नूं अगड़वंडी हो के घट नुकसान नाल उहदा राह रोकण दा यतन कीता। फिर मैं तां ही कहना भी जब तक ये लड़ाई नहीं रुकती उन्ना चिर तक खुराक की दूसरिया तीसरिया समस्याओं का पक्का हल नहीं निकलना। कोई थोड़ा बहुत जिन्ना निकलिया उसका स्वागत किया जा सकता। तो चंगी गल है सर, स्वागत भी होना चाहिए। पन्नू साहब इस तो पहला तुसीं नीरव मोदी का जिक्र किया सीगा, थोड़ा जिहा उनका भला किया सी 13,000 करोड़ रुपए का, तो हुण बहुत ज़्यादा वो प्रॉपर्टी जी हांगकांग चों मिली है 243 करोड़ रुपए की, वो जब्त की है। कितना क फर्क पै सकता? नहीं, वो 13,000 उसका मुढ़ले तौर पर अंदाजा सी जी। बाद में पता लगा कि 11,000 करोड़ का नुकसान तो उन्हें कल्ले पंजाब नैशनल बैंक इक्को दा ही करता जी। फिर ये पता लगा कि टोटल उसका कपड़ा रला के 28,000 करोड़ तो टपदा। हुण उह चों 253 करोड़ है जिहड़े हांगकांग च पता लगे ते भारत सरकार दीयां एजेंसियां ने जब्त कर लिया। उत्थों दीयां बैंकां ने कोऑपरेट कीता होवे तां ही जब्त कर सकदे ने, दूजे देश जा किदां जब्त कर सकदे, कर नहीं सकदे। वो इंटरपोल की लिस्ट के मुताबिक भगौड़ा इत्थों 2018 भज गया सी, 2019 उत्थे फड़िया गया। गिरफ्तारी तो बाद कदे अंदर कदे बाहर इस तरह के चक्कर चो पिया फिरदा। भारत वाले मंगते आ, इन्हां नूं दिता किसी है नहीं, देना किसी है नहीं, बहुत लम्मा चक्कर पऊगा। विजय माल्या नहीं आया, ललित मोदी सारा ही काम गलत करने वास्ते उत्ते बाहर बैठा, वो अजे तक भारत के काबू नहीं आ सकिया। तो भारत वाले इनू एडी छेती किदां लिआउणगे। दूसरा ये है कि एक जिहड़ी मैं अगे भी कई बार गल कहना हुन्ना, पंजाबी का मुहावरा आले च तड़ियां छड्ड के ते उड़दियां दे मगर भजदे ने। उड़दियां तो तां उड़ जाना, मगर भज के करोगे की? जिहड़ियां तुहाडे कोल आले च तड़ियां तुहाडे कोल ते ओह काबू नहीं आउंदियां। आ सहारा वाला जिहड़ा सवरतों आया उन्होंने फड़ लिया,
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਹਾਰਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੋੜ ਦੂੰ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਲੋਕ ਲੱਭੋ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਲਿਸਟਾਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ। ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੈਸਾ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿੱਕੇ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਿਓ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਲਓ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲਾ ਭੰਗੂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਏ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਵਾਲੀ ਭੰਗੂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਭੰਗੂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਢੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੰਗੂ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੰਗੂ ਵਾਲੀ ਭੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਲ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ, ਕਲੱਬ ਲਾਗਿਓਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 7-8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਟ ਪੁੱਟਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਟ ਉੱਟ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਹੀ ਚੋਰ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਚੋਰ, ਰਾਵਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਡੱਡੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।